Hello? Hello? Are you Hello. hearing me? Hey, yeah, we can hear you. Okay. Hello and very good morning to all of you. Hey, good morning. This is Dr. Manish Chandan from Amroha. Hello. Yes, sir, we can Yes, hear sir, you. we Go can ahead. hear you. First of all, whenever I going to start, I want to know something about all of you. So give me a brief introduction about yourself, please. Hello. Hello. Yeah, Prof, we can hear you. Okay, sir. सर मैं चाहता हूँ सर सेशन स्टार्ट करने से पहले Yeah, सब I लोग think, थोड़ा सा अपना ब्रीफ yeah, इंट्रोडक्शन दें प्लीज. yeah, I think there are like 45 plus. So if you can call by name one by one, we can go ahead. ओके. मिस्टर कामाक्षी, मिस कामाक्षी, प्लीज टेल अस अबाउट Good समथिंग morning, योरसेल्फ. sir. My name is वेरी गुड Kamakshi, and मॉर्निंग. I'm working as a. Hello, can you? आपने Yeah, good morning, sir. My name is Kamakshi, and I'm working as a clinical research manager. ओके, वेरी गुड. Thank you, नेक्स्ट sir. वन इज अमित नंदन. Good morning, sir. मिस्टर I अमित am Amit नंदन. Nandan. Yeah. हाँ Good अमित morning, जी sir. प्लीज. I am Amit Nandan. Yeah. Presently working as section controller in Indian Railway. I am also ex-serviceman retired from Indian Air Force. Worked ओ वेरी 20 गुड. years in technical supervisor. Okay, thank you, sir. वेरी गुड. मिस अंजलि जे. मिस अंजलि, आर यू हियरिंग मी? मिस अंजलि, आर यू हियरिंग मी? अनमोल कार्तिकेय. मिस्टर अनमोल कार्तिकेय. Yes, sir, this is Anmol Karthike. I work as a senior engineer at L&T, and I have joined this course so that I can further progress in my career. Oh, very good. And next one is Avinash Singh. Hello, Mr. sir. Avinash Singh. Yeah, Hello. Avinash. Yeah, sir. I'm design engineer, and the purpose of joining MBA is same to enhance my career. Thank you. Okay. Okay. Next one is Bhavya Gupta. Bhavya Good Gupta. morning, sir. I am working as an internal auditor in a CA firm. Good. Next one, Vinod Kumar Singh. Vinod Kumar Singh. Vinod Kumar Singh. Manish Tikara. Good morning, sir. My name is Manish Chikara. I work in a real estate firm and I am from Haryana. Okay. Okay. Mrityunjay Jaiswal. Good morning, sir. My name is Mrityunjay Jaiswal. I am working in BPTL as a MIS head from Varanasi. Thank you, sir. Neeraj Nair. Neeraj Nair.
Good morning, sir. So good morning, class. My name is Neeraj Naya, and I'm currently a student. I've done my BBA. Currently pursuing my LLB along with CS, and I'm doing my MBA because it gives me the requisite skills for getting into corporate. Very good. Niloy Nath. Yes, sir. My name is Niloynath. I'm currently a GATE aspirant doing my MBA to have some extra knowledge regarding the management and all. Okay. Om Upadhyay. Good morning, sir. Hello, everyone. I'm Om Prakash Upadhyay, Assistant Account Officer for Ministry of Defence, Government of India. I'm pursuing my MBA for the higher opportunities in the department as Finance Advisor. Thank you. Palak Arora. Miss Palak Arora. Hello. Good morning, sir. Myself, Palak Arora, and I'm currently working in a MNC. And I've joined this MBA program so that it can help me with my future career growth. Thank you. Lenin Bhagati. Good morning, sir. Myself, Lenin Bhagati. Currently, I am working as a freelance graphics designer. Maboil. Mrityunjay Jaiswal. Mrityunjay Jaiswal. Sir, I have already. Okay. Naina Sir, I'm Manchakal. Hello, good morning, sir. I'm Nanya. I'm basically an engineering graduate. I have few years of teaching experience. Currently, I'm a housewife. Thank you. Okay, good. Harmeet Kaur. Harmeet Kaur. Saurabh Kumar. Hello, one and all. I'm Saurabh Kumar from Delhi. I work for a broadband company in as a social media associate. Okay. Shashank Laksha. Good morning, sir. Hello, am I audible? Yeah. Hello, I'm Yeah, Shashank you are Daksh, audible, working please. as a senior manager in a bank. I need to do this course because definitely this will help me in growing my career. Thank you. Okay, good. Shreyank Maurya. Good morning, sir, and good morning, everyone. My name is Shreyank Maurya, and I am currently working as researcher at National Institute of Solar Energy. Thank you. Sonakshi Mitra. Good morning, sir. I'm working in HR domain with hotel as well as retail segment, sir. Shreya Sarkar. Good morning, sir. I am a chemical engineer working in an aluminium manufacturing unit as a quality manager. Next one, Suchita Rana. Good Suchita afternoon, Rana. sir. Good afternoon, sir. Very good. I am. Very good. No. Hello. Hello. Good afternoon, sir. Hello. Ma'am, please, Suchita Rana. Next one, Sumit Yes, Rathi. yes, sir.
Yeah, hello. Am I audible? Yeah, Suchita, go ahead. Am I audible, sir? Please. Yes, sir. My name is Suchita Rana. I have done my BE in electronics and I was working in biomedical electronics and software testing. But currently, I am a homemaker and I am joining this MBA course to enhance my career to give something more knowledge in management sector. Next one, Sunny Prakash Sahu. Good morning, sir. I am Sunny Prakash Rao. I am from Chhattisgarh, sir, and I am currently working in HSBC Bank, Bangalore. And I joined MBA for career prospect growth and growth prospects, sir. Thank you. Swati Tulsian. Good morning, sir, and good morning, everyone. I am Swati Saraugi, Swati Tulishan. I am joining MBA for my career growth. One Fulera. Hi, good morning, sir. My name is Tribhuvan Fulera. I'm currently working with Bridge Chief Technology Services as business analyst, and I joined this course for enhancement in my management skills. Thank you. B Naresh, Mr. B Naresh. Good morning, sir. Myself, Naresh. I am working in a public sector, currently from Noida. Thank you. See, मेरा जो पर्पस था थोड़ा सा आप लोगों के बारे में जानने का कि मैं देख पा रहा हूँ सब लोग कहीं ना कहीं अपनी अपनी फील्ड में सब एक्सपर्ट लोग हैं। तो मेरे ख्याल से जो हमारा सेशन रहेगा और थोड़ा सा सर इंटेलेक्चुअल रहना चाहिए कि ऐसा ना हो कि खाली मैं ही इसमें इन्वॉल्व हूँ और इसमें जिसको जो भी प्लीज कहीं भी कोई कुछ भी अपना बात करना हो तो इसके लिए मैं देख रहा हूँ कि नॉर्मल स्टूडेंट नहीं है, सब लोग कहीं ना कहीं अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्टाइज लोग हैं। तो हम एक इंटेलेक्चुअल सेशन करेंगे जिसमें मैं कोशिश करूंगा आपके हाथ जो आप जिस पर्पज से यहाँ पर हम सब लोग आए हैं उसको इनहांस करने के लिए। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सर, आप पहला यूनिट से। हमारा जो पहला यूनिट है ये, और मैं देख रहा हूँ इसमें बहुत सारे जो लोग हैं, कुछ कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, कुछ नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से भी हैं। तो मैं इसमें पीपीटी शो कर रहा हूँ और आप लोगों को जिसको अगर पीपीटी चाहिए होगी तो बाद में मैं उनको शेयर भी कर दूंगा। आप लोग अपनी मेल आईडी वगैरह दे सकते हैं मुझे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट, बेसिक ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फर्स्ट थिंग इज अकाउंटिंग। In a normal way, there are three words: account, accountancy, and accounting. In normal course, सब लोग इसको similar words समझते हैं, but in accounting practice, there are three different words. Number one is accounting. Accounting means to say it is concerned with the use of which the record are put their analysis and interruption. Means जो हमें एक certain knowledge provide कराता है कि how to work in accounts book, ठीक। और अकाउंट whenever हम जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो अपनी बुक के अंदर प्रॉपर उसको रिकॉर्ड करना, वो सारा पार्ट ऑफ अकाउंट में आता है। इट इज यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट रिप्रेजेंट बिल्डिंग रिकॉर्ड्स। लाइक देयर आर 5 टाइप ऑफ अकाउंट इन अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच। देयर आर 5 टाइप ऑफ अकाउंट लाइक एसेट्स, liability, equity, and revenue and expense. And second approach is American approach. In American approach, we can classified account in 3 types like personal, real, and nominal accounts. Are you hearing me, everyone? Yeah, we can Yes, hear sir. you. Yes, sir. In a traditional, there are 2 approaches. Number 1 is traditional approach, and traditional approach को हम English approach भी बोलते हैं और एक American approach होता है जो हम modern approach भी बोलते हैं। तो according to the traditional approach, हम अकाउंट्स को 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होता है पर्सनल, एक होता है रियल और एक होता है नॉमिनल।
और पर्सनल अकाउंट की जो भी किसी पर्सन विशेष सिलेक्टेड जितने भी हम जनरल एंट्री अपने यहाँ ट्रांजेक्शन करते हैं वो सब पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। और इसको हम 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग भी हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। लाइक पर्सनल अकाउंट की जो हमारा रूल लगता है 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट का कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। एंड रियल अकाउंट के अंदर हम रूल लगाते हैं कि व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। एंड थर्ड वन इज आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में हम 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट लगाते हैं अपना कि डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। इसी को हम दूसरे मैनर में मॉडर्न अप्रोच जो अमेरिकन अप्रोच बोलते हैं उसको भी हम समझ सकते हैं, उससे भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न अप्रोच वी क्लासिफाइड अकाउंट इन 5 टाइप लाइक एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। इसको हम ऐसे क्लासिफाई करते हैं कि इफ द एसेट्स इंक्रीज तो इट शुड बी डेबिट, if the asset increase it should be debit, if the asset decrease it should be credit. Same manner expense, if expense arises then it should be debited और expense और हमारे इसी तरीके से अगर income होता है तो उसको हम credit करते हैं। liability अगर हमारी इरेज होती है तो उसे credit करते हैं और इसी तरीके से हमारा अगर revenue होगा तो उसको भी हम credit करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम चाहे दोनों किसी भी अप्रोच से चलें हम एक ही जगह पहुंच पाते हैं। अब आता है हमारा एट्रीब्यूट ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहला काम होता है कि इट इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं कि हम बिजनेस में हमारे बहुत सारे इन अ डे रेगुलर बहुत सारे ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसको एक ह्यूमन के लिए कहीं भी नहीं कि हम सारे ट्रांजैक्शन को हम याद कर पाएँ, उसको हम अपनी मेमोरी में रख पाएँ। तो उसके लिए क्या करते हैं कि अगर हम अब प्रॉपर उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अपने ट्रांजैक्शन की अपनी बुक्स के अंदर तो उसको हम इजीली हम कभी भी उसको चेक कर सकते हैं। इट इज द आर्ट ऑफ क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजैक्शन कि अगर हम नॉर्मल वे में कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसको हम कैसे अगर मेमोरी के अंदर रखें कहाँ पर किस तरह से किसके अकाउंट में डालना है, लेकिन अगर हम प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड करते हैं तो उसको हम इमीडिएटली क्लासीफाई करते चले जाते हैं। नेक्स्ट वन, द ट्रांजैक्शन ऑफ यूनिट ऑफ इवेंट्स ऑफ अ बिजनेस मस्ट बी रिकॉर्डेड इन मॉनिटरी टर्म्स। व्हाटएवर ट्रांजैक्शन वी रिकॉर्ड इन आवर अकाउंटिंग बुक तो इट शुड बी रिकॉर्डेड इन मॉनेटरी टर्म्स। लाइक हम उनकी मॉनेटरी वैल्यू निकालेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही हम उनको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। हमारे लिए यूनिट मैटर नहीं करता, हमारे लिए जो उसका मॉनेटरी टर्म का वैल्यू है वो मैटर करता है और उसकी अकॉर्डिंग अपने रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट वन, इट इज द आर्ट ऑफ समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कि इसमें हम एक फीचर ये पढ़ाते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन व्हाट एवर वी हैव टू रिकॉर्ड व्हाट एवर वी हैव टू नॉट। तो उसके लिए क्या है कि हम जो भी अपलोड करते हैं वो फाइनेंशियल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होना चाहिए, जिसको हम किसी भी ट्रांजैक्शन को जो हम मॉनेटरी टर्म्स के अंदर उसका मेजरमेंट कर पाए। अगर कोई ट्रांजैक्शन चाहे हमारे लिए कितना ही इंपॉर्टेंट हो लेकिन अगर उसको हम फाइनेंशियली उसको मॉनेटरी टर्म्स के अंदर मेजरमेंट नहीं कर पाते तो वो हमारे लिए अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते। द रिजल्ट शुड बी कम्युनिकेटेड टू यूजर। हम जो भी अपने यहाँ ये अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन करते हैं उसके थ्रू जो भी हम रिजल्ट निकालेंगे उनको रिजल्ट को केवल निकालना, हमारा रिजल्ट निकालना केवल काम नहीं रहता, कहीं ना कहीं उसको प्रॉपर वे में कम्युनिकेट करना, उसको एनालाइज करना, ये भी हमारा अकाउंटेंट का वर्क रहता है। क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ देखने में आती है जो कॉमर्स बैकग्राउंड के होते हैं उनके लिए तो बड़ा इजी रहता है कि वो रिजल्ट को अपने आप समझ पाते हैं, लेकिन जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से होता है उसको कहीं ना कहीं उसको एनालाइज भी, उसको हमें उसकी लैंग्वेज में आके कम्युनिकेट करना पड़ता है, उसको इजी वे में उसको समझाना पड़ता है। तो अकाउंटिंग का काम केवल अकाउंट रिकॉर्ड को मेंटेन करना, उसका रिजल्ट निकालना नहीं, उसको प्रॉपर इंटरप्रिटेट करना, जो भी उसके यूजर हैं ये भी उसका एक वर्क रहता है। नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। आर यू हियरिंग मी ऑल ऑफ यू प्लीज? यस सर। यस सर। अगर थोड़ा सा अच्छा रहेगा, कहीं आपको लगता है, मैं देख चुका हूँ कि ये नॉर्मल जर्नल क्लास नहीं है। नॉर्मल क्या रहता है, हम लोगों को फिजिकल वे में क्लास को लेने का रहता है। अब यहाँ वर्चुअल क्लास ले रहे हैं तो सबको हम फेशियल एक्सप्रेशन नहीं देख पाते हैं, तो आप लोग प्लीज अगर कहीं भी कुछ लगा है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि क्लास इंटेलेक्चुअल होगा और आप जैसे लोगों के साथ तो मुझे भी कहीं ना कहीं सीखने को मिलेगा, तो जो भी हो प्लीज उसको आप बोलिएगा। नेक्स्ट होता है
हाँ, functions of accounting, systematic Excuse record me, of sir. business service. Yes. Sorry for the interruption. If possible, to the extent possible, please speak in English. I am from South India. I am not able to understand Hindi properly. Okay, I'm trying. Thank you, sir. एक्चुअली हम लोग नॉर्थ यूपी से है ना, तो वेस्ट यूपी से तो थोड़ा सा यहाँ टंग हमारा वैसे ही रहता है. ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ. फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, मीन टू से व्हाट एवर ट्रांजैक्शन इज हैपनिंग इन द बिजनेस, तो उसको हमें एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे के अंदर रिकॉर्ड करना है. जो भी अकाउंट की सब्सिडियरी बुक्स हैं उनको प्रॉपर वहाँ पर जाकर रिकॉर्ड करना होता है. प्रोटेक्टिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, एक रिकॉर्ड करने का हमारा एक मोटो, एक पर्पस ये भी रहता है कि अगर हम चीज़ प्रॉपर अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड कर रहे हैं और उनका प्रॉपर स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम अपनी एसेट्स को भी प्रोटेक्ट कर पाते हैं पूरी तरीके से. अगर हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो उसको प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता. कम्युनिकेटिंग रिजल्ट टू यूजर, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि वॉट एवर वी फाइंड आउट द रिजल्ट ऑफ आवर बिजनेस विद द अपर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, वी हैव टू कम्युनिकेट, वी हैव टू इंटरप्रिटेट टू द यूजर and compliance with legal requirement. As per the legal requirement, like whenever we are going to finalize our accounting, so we have to pay some tax to the government, या जो भी ऐसी पार्टीज हैं उनको कंप्लाइंस करना पड़ता है. तो हमारे पास जो भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हम अपने वहाँ मेंशन कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, उसके लिए प्रॉपर हमारे पास एक लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए और उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो आगे बुक्स के अंदर आएंगे, उसको मैं आपको क्लियर करूंगा कि वो हमारे पास, जिससे वो उसको ऑडिट के टाइम पर चेक कर पाएं प्रॉपर. ऐसा यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कि किस किस को हमारे इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट रहती है. तो उसके अंदर आता है पहला हमारा नंबर 1 ओनर. ओनर मीन टू से हु इन्वेस्ट द मनी इन बिजनेस, हु द एक्चुअल ओनर ऑफ द बिजनेस, जिसको कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस के रिजल्ट से हमारे कि क्या हम रिजल्ट करा, क्या हमने गेन करा, क्या लॉस करा इन ड्यूरिंग द ईयर, उसको जानना होता है. तो उसके लिए सारी जो भी इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो उसको प्रोवाइड करानी चाहिए. क्रेडिटर सेकंड वन इज कि हु सप्लाई द गुड्स, हु सप्लाई द सर्विसेज टू अस. ठीक, उसके बारे में हमें पता हो प्रॉपर, उसको हमारे बारे में पता हो, जो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो उसके पास हम कम्युनिकेट करेंगे. इन्वेस्टर मीन टू से कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो हमारे के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको भी हमें इन्फॉर्म करना पड़ता है, उनको भी हमें इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी जो भी उनकी रिक्वायर्ड होगी. नेक्स्ट वन एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग विद अस, कि उनको भी जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होगी रिगार्डिंग आवर बिजनेस, क्योंकि उनको कहीं बिजनेस के अंदर हमारा इन्वॉल्वमेंट प्रॉपर रहता है और उनको भी ये देखना होता है कि भैया जहाँ हम काम कर रहे हैं यहाँ पर हमारा आगे फ्यूचर कैसा रहेगा, सेफ रहेगा नहीं रहेगा, ये लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, पेमेंट करने में कैपेबल हैं या नहीं है, या वहाँ पर आगे फ्यूचर जो भी इंफॉर्मेशन होगी हमारे बिजनेस की उनको हमें थ्रू अकाउंटिंग देनी पड़ती है. गवर्नमेंट, कहीं ना कहीं हमारी अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट के लिए रहती है, लाइक फाइलिंग द टैक्स या कोई भी और भी कंप्लाइंस वगैरह करना होता है, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन थ्रू अकाउंटिंग हमें उनको प्रोवाइड करानी होती है. पब्लिक, कहीं ना कहीं आज की डेट के अंदर जितने भी कॉर्पोरेट हाउस, जितने भी बिजनेस चल रहे हैं, तो सबको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, पब्लिक के प्रति कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी रहती है. तो वॉट एवर द पब्लिक डिमांड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आवर बिजनेस, वी हैव टू प्रोवाइड दैट विद आवर अकाउंटिंग बुक. एंड रिसर्च स्कॉलर एजेंसीज, बहुत सारे मार्केट में रिसर्च स्कॉलर होते हैं, एजेंसीज होती हैं जिनका काम केवल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना होता है टू द अदर बिजनेसमैन, टू द अदर स्कॉलर, टू द अदर इंस्टीट्यूट. तो उनको जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वो हमारे बिजनेस से, हमारी अकाउंटिंग की बुक से मिलनी चाहिए. ऐसे हमारी इस तरीके से अकाउंटिंग बुक हमारी प्रॉपर मेंटेन होने चाहिए. नेक्स्ट वन मैनेजर, जो हमारे बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं पूरी तरीके से, अगर उनके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो दे कैन नॉट टेक प्रॉपर डिसीजन. तो उनको जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वो हम प्रोवाइड कराते हैं थ्रू अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से. अब बात करते हैं हम ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की. देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग. फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग. मैं कोशिश कर रहा हूँ इन शॉर्ट आपको थोड़ा चीज़ क्लियर करता रहूँ. तो नंबर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकेंड वन कॉस्ट अकाउंटिंग, एंड थर्ड वन मैनेजमेंट अकाउंटिंग.
whenever we talk about financial accounting, तो इसके अंदर पर्पस हमारा मेन ये रहता है कि जो भी हम अपना ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से एक सिस्टमेटिक वे के अंदर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करने का। सेकंड में रहता है कॉस्ट अकाउंटिंग। ये बेसिकली जो ऐसी कंसर्न है लाइक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है वहाँ पर ज़्यादा वर्क करता है, और यहाँ पर हमारा कि अगर हम कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है कि हमारे प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखने वाले हैं, हमारी सर्विस का प्राइस क्या रखने वाले हैं, और किस तरीके से अपनी कॉस्ट को हम कम से कम कर पाएंगे, वो सारी चीज़ें हम थ्रू कॉस्ट अकाउंटिंग सीख पाते हैं। एंड थर्ड वन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग एनालिसिस फॉर डिसीजन मेकिंग, कि हमारे जो भी एक पूरा मैनेजमेंट बॉडी है उनको इन फ्यूचर कैसे कोई चीज़ पर डिसीजन लेना है, कैसे उनको बिजनेस को एक्सटेंड करना है, या कैसे जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग उन्हें अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करना है। ये सारा काम होता है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। अब नेक्स्ट आता है एडवांटेज, कि अगर हम प्रॉपर वे के अंदर अपना अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं तो हमें क्या क्या एडवांटेज होंगे। तो विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, नंबर 1 रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी। लाइक मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जो भी हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं हम सारे ट्रांजेक्शन को याद नहीं कर पाते, तो अगर हमने प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड करा है तो वहाँ पर आपका जो भी ऐसी चीज़ें होंगी वो आपको प्रॉपर लिखी रहेंगी और उसको आप कभी नहीं भूल पाओगे, इजीली चेक हो जाएगा। एविडेंस इन कोर्ट, अगर आपने प्रॉपर वे में सपोर्टिव डॉक्यूमेंट मेंटेन कर रखे हैं तो आप उसको कोई भी अगर आपके ऊपर लीगल कोई कार्रवाई होती है, लीगल एक्टिविटी होती है, तो ऐसी कंडीशन में आप अपनी अकाउंटिंग बुक्स को एज एविडेंस कोर्ट में प्रूव कर सकते हैं। थर्ड वन इज टैक्स पर्पस, वट एवर टैक्स यू आर पेइंग टू द गवर्नमेंट, आप उसको प्रॉपर वे में जस्टिफाई करने के लिए अपनी अकाउंटिंग बुक को वहाँ पर शो कर सकते हैं। कंपैरेटिव स्टडी विद द कंपैरिजन विद द whenever we try to comparison to the other similar industry, या कभी कभी हम कोशिश करते हैं कि अपना कोई आइडियल अप्रोच बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग कुछ कंपैरिजन करना चाहते हैं कि उनकी और हमारी एफिशिएंसी में कहाँ पर फर्क रह रहा है। तो अगर हमने प्रॉपर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अपने यहाँ मेंटेन करेंगे, प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड करा होगा, तो वो चीज़ हमारे लिए आसान रहती है, हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं और अपनी एफिशिएंसी को ग्रो कर सकते हैं। सेल्स ऑफ बिजनेस, if we want to sale of our business at any time, तो अगर हमने प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड कर रखा है तो उससे हम अपनी पूरी पास्ट हिस्ट्री शो कर सकते हैं, अपनी एसेट्स को शो कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग अपनी अपनी वैल्यू को बना सकते हैं बिजनेस की। एंड नेक्स्ट वन असिस्टेंस टू द इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट लाइक कोई व्यक्ति की, अगर किसी व्यक्ति की लायबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाए और कि वो अपनी एसेट्स को भी सारा सेल कर दे तो भी वो पेमेंट नहीं कर पाता, तो ऐसा व्यक्ति लीगल वे में एक इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है। तो अगर कोई फर्म या कोई पर्सन अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कराना चाहता है तो ऐसी कंडीशन में उसको प्रॉपर अकाउंटिंग अपनी मेंटेन है तो वो उसको एज प्रूफ शो कर सकता है। फॉर वेरियस पार्टी, बहुत सारे, इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको कुछ रिक्वायरमेंट है किसी भी तरह की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, तो अगर हमने प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड कर रखा है तो वी कैन सप्लाई दिस इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट वन आता है लिमिटेशन। ये कुछ बेनिफिट्स से, अब लिमिटेशन की बात करेंगे। रिकॉर्ड्स ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, जैसा एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि वी रिकॉर्ड ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन इन आवर बुक। तो कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं, कभी कभी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है हमारे लिए जो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बट हमारा ये लिमिटेशन है कि वी रिकॉर्ड ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, तो इससे हम कभी कभी नुकसान भी होता है। लेकिन कुछ लोग इसको बड़ा एफिशिएंट वे में क्या करते हैं कि अपने फुट नोट में अलग से नोट कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो बहुत सारे लोग अब ये प्रैक्टिस में मिलाने लगे हैं। नेक्स्ट होता है इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस नॉट कंसिडर्ड। सी एज पर द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि लगातार हर चीज़ की वैल्यू में कुछ चेंज आ रहा होता है, उसकी प्राइसेस में कुछ चेंज आ रहा होता है। लेकिन लाइक मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। हमने कोई बिल्डिंग परचेज करी जब हमने बिजनेस स्टार्ट करा था 90s में या 2000 में, और उसकी वैल्यू अपने 2 लाख या 50 लाख शो करी थी। अब उसकी वैल्यू में चेंज हो रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पर बार बार उसकी वैल्यू में चेंज नहीं शो करते, हम उसको जो उसकी हिस्टोरिकल प्राइस होता है उस पर ही शो करते हैं। तो ये बहुत बड़ा हमारा लिमिटेशन रहता है। नो रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, वो कहते हैं ना कि हम अपने इसको जो भी बैलेंस शीट होता है इसमें बहुत सारी चीज़ मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है थ्रू आर फाइनेंशियल
स्टेटमेंट, थ्रू आवर बैलेंस शीट, थ्रू आवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो कंप्लीटली रियलिस्टिक नहीं होता, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैनिपुलेट भी रहती हैं। एंड पर्सनल बायस ऑफ अकाउंटेंट अफेक्ट द अकाउंटिंग स्टेटमेंट। ऐसा बहुत बार होता है कि कहीं ना कहीं अकाउंटेंट बहुत सारी चीज़ों को मैनिपुलेट कर देते हैं अपने तरीके से। परमिट्स ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट लीफो एंड फीफो, ये दो हमारे दो स्ट्रेटेजी होती हैं स्टॉक मेंटेन करने की, लीफो एंड फीफो। इन शॉर्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ लीफो फीफो क्या होता है। लीफो बेसिकली, लीफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, और बेसिकली ये एक स्टॉक मेंटेन करने का एक प्रॉपर एक फंडा है, एक पॉलिसी है। लास्ट इन फर्स्ट आउट बेसिकली हम ऐसी इंडस्ट्री में मेंटेन करते हैं जो ईडेबल आइटम के अंदर होता है। यहाँ पर जो चीज़ सबसे लास्ट में आती है उसको हम सबसे पहले सेल करने की कोशिश, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और एक होता है हमारा फीफो, फर्स्ट, हाँ सॉरी मैं गलत बोल गया, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। यहाँ पर जो चीज़ पहले आएगी वो चीज़ पहले जाएगी, और ये ईडेबल आइटम के अंदर होता है। लाइक हमारे पास कोई भी हम ग्रोसरी का काम कर रहे हैं या कोई फ्रूट्स में काम कर रहे हैं, जो ऐसा आइटम है जो जल्दी कुछ टाइम तक खराब हो जाएगा, तो उसको हम ज़्यादा रखेंगे तो वो खराब होने की स्थिति में आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, फीफो अप्लाई करते हैं स्टॉक मेंटेन करने के लिए। जो चीज़ पहले आई होगी उसे हम पहले सेल करते हैं। नेक्स्ट में आता है लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पुरानी होने के बाद ज़्यादा महंगी, ज़्यादा कॉस्टली बिकती हैं, ठीक, तो उसको हम स्टॉक करते हैं अपने पास, जो और जो लास्ट में आया होगा, जो पहले आया होगा उसे हम पहले निकाल देते हैं। नेक्स्ट वन आता है, excuse me, नो रियल, can you give a real time example for this LIFO? लीफो लाइक ब्रिक फैक्ट्री होती है, ईट के भट्टे बेसिकली, तो वहाँ पर ईट बनती है। तो ईट का क्या होता है, वो जितना धूप में पकती है वो उतनी ज्यादा मजबूत जाती है, उसके ज्यादा रेट बढ़ जाते हैं। तो जब मार्केट में की डिमांड होती है इसके ईट की, तो उस कंडीशन में तो क्या होता है कि आप कैसा ही माल निकाल सकते हो, उस समय माल चल रहा होता है। लेकिन एक टाइम पर क्या होता है कि जब मार्केट में उसकी डिमांड कम है, तो ऐसी कंडीशन में जो जितना सुपर क्वालिटी का गुड्स होगा उसके प्राइसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन तो और बहुत सारे आइटम है, राइस के लिए बोलते हैं इसके अंदर हम कि जो पुराना चावल है ज्यादा महंगा, बिकता, और भी चीजें आती है इस तरह की। Okay, thank you. नो रियल टेस्ट फॉर मैनेजरियल परफॉर्मेंस, ऐसा कोई हमारे पास टूल नहीं है कि हम अपनी मैनेजरियल परफॉर्मेंस को प्रॉपर वे में करेक्ट कर पाएँ, चेक कर पाएँ। एंड हिस्टोरिकल इन नेचर, जैसे मैंने बताया कि एज ए टोल्ड यू अर्लियर कि हम अपने यहाँ जो एसेट्स वगैरह को मैनेज करते हैं वो हिस्टोरिकल वैल्यू पर रखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो पॉइंट रहता है, हिस्टोरिकल इन नेचर होता है। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। इफ वी वांट टू लर्न समथिंग अकाउंटेंसी, तो वी शुड नो अबाउट अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। हर सब्जेक्ट के अपने कुछ न कुछ अकाउंटिंग वर्ड, अपने कुछ प्रॉपर वर्ड्स रहते हैं। तो इन द सेम मैनर इन अकाउंटेंसी वी हैव ऑल्सो सम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। तो वैसे तो आप सब लोगों को पता ही होगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ इन शॉर्ट थोड़ा सा जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आपको शो करने के लिए। नंबर वन आता है बिजनेस, an organization created with the objective of the making a profit from the sale of goods or services. Think, understand everyone, I think. Hello? Yes, sir. Yeah, we are Hello? getting it. Yeah. Hello? Okay. Next one, bookkeeping. The act of systematically recording the financial transaction affecting the business. Whatever transaction happening in the business, in bookkeeping we record the systematically transaction in our book. Next one, book value, the net amount original value plus or minus any adjustment such as depreciation showed in the account for an asset, liability or owner equity item. Like book value mean to say ki if we purchase a furniture, a building, a machinery in any year, and we are using the machinery, the car, the building, the furniture, and after completing every year we have to हमें कहीं ना कहीं उसके ऊपर कुछ डेप्रिसिएशन व्हाटएवर जो उसकी एक टाइम वैल्यू जाने पर या यूज करने पर उसकी जो वैल्यू में कमी होती है उसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो हमें हर ईयर में उसकी हिस्टोरिकल वैल्यू में से उस
every year entity reporting covering 12 months. In normal way, there are two type of year. Number one, calendar year, and second one is financial year. Calendar can mean to say Jan to December, and financial year is April to March. And in every production, हमें कोई भी ऐसा जो भी एंटिटी होगी या जो भी इंस्टीट्यूशन होगा उसको अपना एक 12 मंथ की ड्यूरेशन के अंदर अपने अकाउंट को फाइनलाइज करना होता है, उनसे रिजल्ट निकालना होता है. Connection, exchange of goods or services between business or individual can also be other events having an economic impact on a business. जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है थ्रू गुड्स या थ्रू सर्विसेज, बिजनेसमैन या इंडिविजुअल या कस्टमर के बीच में, वो सारा ट्रांजेक्शन बोला जाता है. अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी नेक्स्ट में आता है जर्नल. ये प्राइमरी बुक बोलते हैं इसको जर्नल की, या ओरिजिनल बुक भी बोलते हैं अकाउंटिंग के अंदर जर्नल को. A book of original entry in a double entry bookkeeping system. The journal list of transaction and indicate the account to which they are posted. In journal जो बुक होता है हमारा, ये हमारी पहली बुक है हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, हर ट्रांजेक्शन को, और एक प्रॉपर ऑर्डर के अंदर, डेट वाइज उनके ऑर्डर के अंदर, और उसके अंदर हम इंडिकेट करते हैं कि किस अकाउंट में ये एंट्री पोस्ट होनी है, वो भी उसके अंदर मेंशन होता है. जर्नल एंट्री, अ रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शन वेयर डेबिट एंड इक्वल क्रेडिट. ये पढ़ते ही हम इस चीज को कि ये डेबिट क्रेडिट हमेशा इक्वल होगा, वो मैं आगे और आपको एक्सप्लेन करूंगा. तो जो जर्नल एंट्री होगी, जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो विद एक जर्नल एंट्री के थ्रू पास होता है हमारे. लेजर, a summary statement of all the transactions relating to the person, assets, expense or income which have taken place during a given period of time and show their net effect. लेजर एक हमारी सेकंड बुक होती है जर्नल के बाद. हम करते हैं अपने अकाउंटिंग Anyone able to hear the class? No, we cannot hear. I think we lost. Hello? Lost. Sir, voice is not coming. Hello? Are you hearing me, sir? I'm audible? Yeah, I think it went. Yes, sir, audible, sir. Yeah, it's good now. Hello? Yes, sir, you are audible. You can go ahead. Hello? Hello, am I audible, sir? Yes, we can hear, sir. Go ahead. Continue. I think there's a network latency. Some network user. Looks like, yeah. Okay, now can start. Yeah. Continue, please. Laser. In Laser, the second book of accountancy. In Laser, हम क्या करते हैं, सब जो भी अकाउंट से रिलेटेड या हमारे बिजनेस से रिलेटेड या एसेट्स हैं या एक्सपेंस, सबका एक इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हैं. और विद द हेल्प ऑफ दिस अकाउंट जो भी हमारा पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर नेट इफेक्ट होता है वो Someone is having the mic on. So it's getting echoed. I believe Sumit, is that yours? Yeah. Yeah. Now it looks fine. Okay, sorry about that. Next one is trial balance. A listing of all account balances that provide a test of whether total debits equal total credit. See, एक इक्वेशन होती है हमारी अकाउंट्स की कि वो बोलते हैं एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और उसको हम दूसरा प्रूव करते हैं कि डेबिट ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट. तो विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस हमने जितने भी ये लेजर अकाउंट पोस्ट करे हैं ये ठीक उसके बाद बनता है, और ये ट्रायल बैलेंस कहीं ना कहीं हमारी एक अकाउंटिंग बैलेंस को शो करेगा और जो बताएगा कि हमारे डेबिट और क्रेडिट जितने भी अकाउंट हैं उनका टोटल इक्वल आ रहा है.
जिससे हम फर्दर आगे उसके ऊपर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट में आता है रेवेन्यू, इंक्रीज द कंपनी रिसोर्सेज फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, मीन टू से कि वॉट एवर सर्विस प्रोवाइडेड बाय अस या वॉट एवर गुड सोल्ड बाय अस, उसके बदले में जो हमें अमाउंट मिलता है वो हमारे लिए रेवेन्यू कहलाता है। Hello, sir. Hello. Hello. हाँ यस सर वो आप थोड़ा वो जर्नल एंट्री और उस वाली स्लाइड में जाएंगे थोड़ा, अभी आप जो बता रहे थे जर्नल। बिल्कुल। हाँ जी बोलिए सर, बोलिए क्या पूछ रहे थे, बताइए। सर वो उस वाली स्लाइड पे थोड़ा एक बार जाएंगे तो वहाँ पे मतलब जो जर्नल एंट्री और एक आपने जो एक और जो बताया था जर्नल लेजर, स्लाइड पे थोड़ा जरा, हाँ जर्नल एंट्री और वो लेजर में सर, ये उनमें डिफरेंस क्या है सर थोड़ा बताइए। लेजर, जर्नल लेजर में डिफरेंस क्या है? सॉरी जर्नल एंट्री और ट्रायल बैलेंस सर, जर्नल एंट्री और ट्रायल बैलेंस, क्योंकि दोनों में ही आपका डेबिट्स इक्वल टू, देखिए जर्नल एंट्री हमारी ओरिजिनल बुक कहलाती है एंट्री की, जो भी प्रॉपर हमारे यहाँ आर यू हियरिंग मी सर? हेलो। हाँ सर, जर्नल एंट्री, जर्नल जो बुक होती है हमारे यहाँ, इस पे हम प्रॉपर एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर डे वाइज रिकॉर्ड होता है। लेजर जो बुक बनाते हैं, इस पे जितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती है सबका एक इंडिविजुअल अलग अकाउंट मिलता है, यानी कि इन अ वन पेज हम एक अकाउंट मेंटेन करते हैं। और विद द हेल्प ऑफ लेजर, जो हमने लेजर से बैलेंस निकाला है, लाइक डेटर से हमें कितना पैसा लेना है और क्रेडिटर को हमें कितना पैसा देना है, उनसे जो नेट इफेक्ट निकाला, जो नेट बैलेंस निकाला, जो नेट अमाउंट निकाला, तो विद द हेल्प ऑफ इंडिविजुअल अकाउंट वी मेंटेन आर ट्रायल बैलेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट सर? यस सर। So with the help of net effect, with the help of net amount, with the help of net balance of individual account, we prepare trial balance, जो हमें शो करेगा, जो बताएगा कि हमारे डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल। Are you satisfied sir? Hello, am I audible? Yes sir. Yes sir. Next, balance sheet. After completing the trial balance, we prepare our financial account. We prepare our financial account. See, in financial account, there are two types of statement. Number one, income statement, and second one is position statement. In income statement, we prepare two types of account. Number one, trading account, and second one is profit and loss account. With the help of trading account, we find out our excess of sale over cost of goods sold, and we show all the direct expenses in our trading account. And after completing the help of trading account, after getting the hello, hello. Yes sir. You are audible. You are audible. हाँ जी, okay. After completing our trial balance, we prepare our financial account. In financial account, we prepare two types of statement. Number one, income statement, and second one is position statement.
In income statement, we prepare two type of account. First one is trading account and second one is profit and loss account. In trading account, we find out the axis of sale over cost of goods sold. We get our profit or gross loss. If our sale is axis more than cost of goods sold, so it means we generate gross profit, and if we cost of goods, we got our gross loss. With the help of this gross profit or gross loss, we prepare our profit and loss account. In profit and loss account, we show all type of indirect expenses or indirect expenses. And after completing the profit and loss account, we find out our net profit or net loss. Mean to say net result of the business for particular year. And after completing profit and loss account, we prepare our position in the statement. In position statement, we prepare our balance sheet. Balance sheet is an itemized statement which lists the total assets and total liability of a given business to show its net worth at a given moment in time. We can say balance sheet is a mirror which reflects the financial position of our business on a particular date. Whatever the assets have, whatever we have liability, whatever the amount we have to pay our creditors. So are all balance sheet. Next one, capital. Capital mean to say property or money used and owed by a business and used to acquire further income or benefit. In another word, we can say capital, money or goods or property invested by the proprietor in business for future income, for future benefit. Next one is debtor. Debtor is a person who owes money. The amount due from is called debt. Not only owes money, if we sell to someone on as a credit, तो वो जो बनेगा वो मान लीजिए डेटर कहलाएगा और इन फ्यूचर उसका अमाउंट लेना होगा. Creditor, a person who to whom money is owing or payable is called a creditor. Same manner, if we purchase credit from someone, so in future we have to pay something. So this one is our creditor. Credit, an entry on the right side of a ledger account. Credit mean to say कि अगर हमने किसी को उधार परचेज, जो credit mean to say कि जो हम किसी अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, तो ये लेजर अकाउंट की क्रेडिट साइड में आता है. ये मैं आगे आपको और एक्सप्लेन करूंगा जब उसको प्रॉपर रूल समझाऊंगा जर्नल एंट्री के लिए. नेक्स्ट वन, गुड्स. This include all article, commodities or merchandise in which the business deals. Thus, cloth would be good for a dealer in cloth, furniture would be good for a dealer in furniture, and so on. See, in a general manner, goods mean to say कि हम बोल सकते हैं किसी भी सामान को, but whenever we talk about in our accounting manner, तो goods mean to say कि जिस article में भी हम business कर रहे होंगे, चाहे वो cloth हो, car हो, furniture हो, resources owned or controlled by a person or a company, कि जो भी ऐसी कोई चीज जो फ्यूचर बेनिफिट हमें प्रोवाइड कराएगा, जो हमारी आगे फ्यूचर एक्सपेंशन में हेल्प करेगा, वो सब पार्ट ऑफ एसेट है. एंड नॉट फॉर सेल हो. हमारा पर्पस उसको लेने का सेल करना नहीं है, हमारा पर्पस बिजनेस के ग्रोथ के लिए, वो सब हमारा एसेट होता है. नेक्स्ट वन, नेट एसेट. द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटी. जो भी हमारा इसका डिफरेंस होगा वो नेट एसेट भी कहलाता है. Next one, liquidity. The availability of cash or ability to obtain is quickly also used to determine debt repayment ability. See, capital हमारे लिए एक अलग पॉइंट है कि हमारे पास क्या क्या एसेट्स हैं और हमने क्या इन्वेस्ट करा. बट whenever we talk about liquidity, liquidity mean to say कि हमारे पास liquid fund क्या है, कि अगर हमें if we paid immediately to someone, so whatever amount we have, so it's called liquidity. Goodwill. Goodwill in an intangible asset that exists when a business is valued at more than fair market value or its net asset. Goodwill के लिए हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि intangible asset. Intangible mean to say which cannot be seen, feel or touched,
और गुडविल मीन टू से कि एक ऐसी चीज, एक ऐसा यूनिक यूएसपी हमारे पास कि जिसके थ्रू हम किसी और सिमिलर बिजनेस में सिमिलर इन्वेस्टमेंट के बाद हम ज्यादा अर्न कर पा रहे हैं, तो दैट इज आर गुडविल। इंटरेस्ट, द कॉस्ट ऑफ यूज ऑफ द मनी, वॉट अगर इफ यू आपने किसी से लोन लिया, उसके बदले में आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ रहा है उसके लिए कॉस्ट, तो दैट इज आर इंटरेस्ट। नाउ वी शो टाइप ऑफ एसेट्स। इसमें आता है हमारा करेंट एसेट। Current assets are those assets of a company that are expected to be converted to cash, sold or consumed during the normal operating cycle of the business in a 1 year. Example are cash, AR, accounting receivable, short-term investment, US government, government bond. आपकी कैश में कन्वर्ट हो जाए, वो सब करेंट एसेट्स का पार्ट है। करेंट लायबिलिटी, लायबिलिटी टू बी पेड विद इन 1 ईयर ऑफ द बैलेंस शीट डेट, कि विद इन 1 ईयर जिसको हमें मैच्योर करना है, वो सब करेंट लायबिलिटी होंगी। ड्राइंग, ड्राइंग मीन टू से एनी अमाउंट ऑफ गुड्स, एनी अमाउंट कैश और गुड्स विड्रॉ बाय द प्रोपराइटर फॉर अ बिजनेस इज कॉल्ड ड्राइंग। सी कोई भी बिजनेसमैन अगर अपने बिजनेस से अपने घर के लिए, अपने डोमेस्टिक वर्क के लिए कोई पैसा या गुड्स निकालेगा तो वो ड्राइंग होगा और वो उसकी कैपिटल में से लेस होता है। बैड डेप्ट, बैड डेप्ट एंड अनकलेक्टेबल अकाउंट रिसीवेबल मीन टू से आपने किसी को उधार गुड्स सेल करे, को उधार सर्विस प्रोवाइड करी, और वो, और आज की डेट में सारा बिजनेस साइड पर ये कहीं ना कहीं, और हम कुछ अमाउंट उसके अंदर से रिकवर नहीं कर पाते हैं, तो दैट इज आवर बैड डेप्ट। और ये हमारे लिए एक लीगल एक्सपेंसेस है। वी कैन शो दिस एक्सपेंसेस ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एडवाइजेबल एक्सपेंस है as per the Chartered Institute of India. Next one, loss. A loss is expenditure without any benefit to the concern. On the other hand, expense is incurred to result in some benefit. Thus, amount is spent on lighting in an expense, but loss due to the fire is loss. Loss in many ways हमें कई बहुत तरीकों से कहीं ना कहीं बिजनेस के अंदर कुछ लॉस हो सकता है। एक नॉर्मल लॉस भी आता है, एक एबनॉर्मल भी होता है, और ये लॉसेस हम अपने बिजनेस में प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर मेंशन कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। ये एडवाइजेबल एक्सपेंस। नेक्स्ट वन, इनकम। इट्स इनफ्लो ऑफ एसेट्स व्हिच रिजल्ट इज एन इंक्रीज इन द ओनर इक्विटी, कि जो भी ऐसा इनफ्लो हो जो हमारी एसेट्स के अंदर इंक्रीजमेंट करे, वो इनकम कहलाता है हमारा। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर टेक प्लेस व्हेन एन एसेट्स और सर्विसेज एक्वायर्ड। सी देयर आर टू टाइप ऑफ एक्सपेंसेस इन आवर बिजनेस, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रूटीन एक्सपेंसेस है और जो हमारे बिजनेस की एक्टिविटीज का एक पार्ट है, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन करते हैं। बट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एक्सपेंडिचर, तो इट्स लाइक अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन टू से कि इफ वी परचेज सम काइंड ऑफ एसेट, it's not shown in profit and immediately such as salary, यानी कि जो भी हमारे रूटीन एक्सपेंस है विद इन अ ईयर और जो हमारी बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटी का पार्ट है, दीज आर ऑल एक्सपेंसेस। टर्नओवर, टर्नओवर इट मींस टोटल ट्रेडिंग इनकम फ्रॉम कैश सेल एंड क्रेडिट सेल, कि जो भी हम पूरे ड्यूरिंग द ईयर हम जो अपनी सर्विसेज या गुड सेल कर रहे हैं उसका पूरा टर्नओवर, चाहे वो थ्रू कैश हो या क्रेडिट हो। नेटवर्थ, नेटवर्थ इट मीन एसेट्स minus outside liability. Profit of a business increase net worth, wherever loss reduce the net worth of the business. See, net worth का एक फॉर्मूला होता है हमारा assets minus outside liability. There are two type of liability. Number one is internal liability and second one is outside liability. Internal liability mean to say कि whatever amount paid to the owner by the business, क्योंकि हमारे यहाँ बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों की एंटिटी जो है वो डिफरेंट है, इंडिविजुअल है। तो जो बिजनेस को बिजनेसमैन की लायबिलिटी होती है, ओनर की होती है, प्रोप्राइटर की होती है, उसे हम इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं।
और जो आउटसाइडर पार्टीज है उनके लिए लायबल जो है वो हमारा आउटसाइड लायबिलिटी कहलाता है। तो प्रॉफिट हमारी नेटवर्थ में इंक्रीज करता है, लॉस हमारी नेटवर्थ को डिक्रीज करता है। अब सर मैं इसमें 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहूंगा, 5 मिनट का 10 मिनट का आप लोगों के लिए भी, आप भी अपना इसके अंदर ब्रेक ले सकते हैं। और जो भी जितनी भी मैंने अभी स्लाइड शो करी है इससे रिलेटेड कोई भी किसी के पास कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज वो हम 10 मिनट 12:20 हो रहे हैं, 12:30 पे ज्वाइन करेंगे और उसके अंदर जो भी आपकी प्रॉब्लम हो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। हेलो, Okay, sir. Yeah, makes sense. ओके।
Hello. Can we start, sir? I welcome you again, all of you. Yeah, thank you. Wait for a moment. Yeah, GAP. Refer to generally accepted accounting principle. See, हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति यूपी में बैठा है, कोई बंगाल में बैठा है, कोई एमपी में बैठा है, बट सबका एक जो तरीका है कि अकाउंटिंग प्रैक्टिस का वो सबका सेम रहता है. तो उसके लिए उसके पीछे है ये गाप, जनरल एक्सपेक्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल. एक रूल, एक रेगुलेशन, एक गाइडलाइन बनाई गई है सारे अकाउंटेंट के लिए, जिसके ग्राउंड पर सब लोग अपने अकाउंटिंग करते हैं. तो जिसकी वजह से सब लोग सिमिलर रहता है. ये कहलाता है हमारा गाप. एक इसी तरीके की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, उनके लिए एक अलग बना हुआ है. ठीक है, हमारे इंडिया के अंदर जो भी प्रैक्टिस करते हैं अकाउंटिंग की, वो सारे गाप के अकॉर्डिंग करते हैं. नेक्स्ट होता है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. देयर आर टू टाइप ऑफ बेसिस. नंबर वन इज कैश बेसिस और एक होता है हमारा एक्रूअल बेसिस.
और कैश बेसिस की बात करें, एक्चुअल कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट आर रिकॉर्डेड। यहाँ पर कोई भी ट्रांजेक्शन जो क्रेडिट में होगा तो उस ट्रांजेक्शन को वी नेवर रिकॉर्ड, ठीक, वी रिकॉर्ड ओनली दो ट्रांजेक्शन विच मतलब जो हमारे कैश के अंदर हुए हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड हियर। सेकंड वन इज as per told you earlier, accrual basis, the income whether received or not but has been earned or accrued during the period forms part of the total income of the period. Next one is the firm has taken benefit of a particular services but has not paid with that period. The expense will relate to the period in which the service has been utilized and not to the period in which payment for it made. See, we can explain this in this way कि accrual basis हमें किसी को पेमेंट करना है या हमने अभी सेल करी, हमने जो सेल करी वो दिसंबर मंथ पे करी, बट उसका जो रिवेन्यू मिल रहा है वो हमें उसने कहा पार्टी ने कि डेटा ने हमारे कि हम जनवरी में पेमेंट करेंगे, फरवरी में पेमेंट करेंगे, तो दिस सेल रिलेटेड टू द दिसंबर, ये हमारा पेमेंट मिलेगा जनवरी फरवरी में, वो मैटर नहीं करेगा। तो एक्रूवल बेसिस मीन टू से कि जिस पर्टिकुलर जिस ड्यूरेशन का वो ट्रांजेक्शन है, चाहे वो सेल हो, चाहे वो परचेस हो, चाहे वो एक्सपेंस हो, चाहे वो इनकम हो, वो उसी पर्टिकुलर पीरियड में शो होगा, तभी हम अपने एक्चुअल अपने नेट रिजल्ट पर पहुंच सकते हैं। ये कहलाता है हमारा एक्रूवल बेसिस सिस्टम। नेक्स्ट आता है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मिक्स बेसिस बनाते हैं अपने आप, कॉम्बिनेशन ऑफ कैश एंड एक्रूवल बेसिस। ये बहुत कम प्रैक्टिस में रहता है, यहाँ पर कुछ जगह पर हम कैश बेस लगाते हैं और कुछ जगह पर हम एक्रूवल बेस पर लगाते हैं। अब सिस्टम ऑफ काउंटिंग, ये हमारे दो हैं अकाउंटिंग के, एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम और एक होता है डबल एंट्री सिस्टम। अगर हम सिंगल एंट्री सिस्टम की बात करें तो इसे हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी बोलते हैं, और अगर हम अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो ये मार्केट से बिल्कुल गायब सिस्टम है, इसको कोई फॉलो नहीं करता है, ना ही कोई इसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जैसे मैं आपको बताया था कि शुरू पे कि 3 तरह के अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जो हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं इन सिंगल एंट्री सिस्टम, बट वेनेवर वी टॉक अबाउट डबल एंट्री सिस्टम सबसे ज्यादा पॉपुलर, और आज की डेट में लगभग सभी लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, सभी इसके थ्रू अपनी अकाउंटिंग प्रैक्टिस करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम, वन अकाउंट इज गिवन डेबिट व्हाइल द अनदर अकाउंट इज गिवन क्रेडिट विद एन इक्वल अमाउंट, कि जब एक अकाउंट को सेम अमाउंट से डेबिट करें, दूसरे अकाउंट को सेम अमाउंट से क्रेडिट करें, तो ये डबल एंट्री होता है, इसलिए ड्यूअल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं। और ड्यूअल एंट्री सिस्टम जो इन्वेंट किया था एक ल्यूकोस पैसिओली थे, इटाली के, ये उन्होंने करा था, और आज की डेट में सब लोग इसी को ही फॉलो करते हैं, इससे ही अपना अकाउंट बनाते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा थ्रू अकाउंटिंग आपको ये अकाउंट जो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट मैंने आपको अर्लियर शो करा था उसके थ्रू मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करूंगा। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, देयर आर 2 टाइप ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट, जो आप चार्ट में शो देख सकते हैं इसको। In personal account, there are 3 type of personal account. Number 1 is natural person, second one artificial person, and third one representative person. Whenever we talk about natural person, like जो living nature person like me and you, नेचुरल पर्सन है। एक आर्टिफिशियल जो लॉ द्वारा क्रिएट करे पर्सन, लाइक कोई भी कंसर्न, कोई भी फर्म, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी कंपनी, XYZ कंपनी, रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी, ये सब, या XYZ फर्म, ये सब आर्टिफिशियल पर्सन है। एंड थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट, जो किसी पर्सनल विशेष को रिप्रेजेंट करे, क्योंकि हम उसका नाम नहीं शो करते, इसलिए बेसिकली उसमें शो होता है जैसे हमारा कोई आउटस्टैंडिंग सैलरी है या प्रीपेड कोई चीज। आउटस्टैंडिंग मीन टू से मैं उसको और कुछ करता एक्सप्लेन करने की। आउटस्टैंडिंग कि हमारे यहाँ कोई एम्प्लॉय वर्क कर रहा है और हमें उसको सैलरी पे करनी है, बट हम अभी उसको हम सैलरी नहीं पे कर रहे हैं, उनको नेक्स्ट मंथ पेमेंट करेंगे सैलरी का, तो वो जो सैलरी होगी उस सैलरी को हम अपने आउटस्टैंडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है ये किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये कहलाते हैं हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट, ठीक। और इन पर्सनल अकाउंट अगर हम डबल एंट्री सिस्टम की बात करेंगे तो रूल हमारे यहाँ वही अप्लाई होगा कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सेकेंड वन आता है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट को हम 2 तरह से डिवाइड कर क्लासिफाई करते हैं, एक होता है रियल अकाउंट और एक होता है नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में 2 टाइप की एसेट्स होती है हमारे पास, एक टैंजिबल रियल एसेट्स, एक इंटैंजिबल रियल एसेट्स। टैंजिबल रियल अकाउंट मीन टू से ऐसी एसेट्स which can be seen, feel or touch, like machinery, furniture, building, car, equipment. And intangible real assets mean to say
copyright, goodwill, trademark which cannot be seen, feel or touch. और रियल अकाउंट के अंदर हमारा गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग लगता है कि व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट. लाइक इफ वी परचेज कार, so entry should be passed car account debit to cash account, means car comes and cash goes. कार भी हमारे लिए एक टेंजिबल एसेट्स है, ठीक है, और कैश भी हमारे लिए टेंजिबल एसेट. तो कार आई, वो आया तो एसेट जो आई उसे डेबिट और जो गया वो क्रेडिट. एंड द थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट. इन नॉमिनल अकाउंट मीन टू से ऑल एक्सपेंस एंड ऑल इनकम. ठीक, इसके अंदर जो भी हमारे एक्सपेंस होंगे, जो लॉसेस होंगे उनको डेबिट करेंगे और जो इनकम होंगी, जो गेन्स होंगे उनको क्रेडिट करेंगे. ये मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पर और शो कर रखा है, आप लोग इसको चेक कर सकते हैं. बात रूल ऑफ डेबिट ये दोबारा आ रहा है इसके अंदर. पर्सनल में रूल हमारा है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. रियल के अंदर डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और नॉमिनल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन. अकाउंटिंग साइकिल ये प्रॉपर हमें किस तरीके से पूरा सिस्टमेटिक एक मैनर है, एक तरीका है, एक पूरा उसका साइकिल है, कैसे आपको मेंटेन करना है. तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द मॉनेटरी ट्रांजैक्शन बिकॉज वी रिकॉर्ड ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इन आवर बुक्स. तो पहला काम ये हो गया. सेकेंड वन कि आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग द मॉनेटरी ट्रांजैक्शन वी रिकॉर्ड ऑल द एंट्रीज इन आवर ओरिजिनल बुक, जर्नल. And second one, ledger, we prepare account for every one, for every person, for every asset, for every liability in ledger book. And third one, after completing the ledger, we prepare trial balance for the accuracy check of our account. And after completing the trial balance, we prepare our financial account. In financial account, we prepare trading and profit and loss account. And finally, we prepare balance sheet which tell us about the position of our business, which tell us about the actual assets on a particular date of our business. Next one आता है accounting concept. Accounting concept. See, कोई भी जो अगर हम किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे तो कुछ उसके अपने यहाँ कुछ कंसेप्ट, कुछ रूल, कुछ रेगुलेशन होते हैं. तो उसी तरह के हमारे अकाउंटिंग में भी है. तो पहला है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. The business is distinct from the person who own it. मैंने आपको शुरू में बताया था अभी कि हमारे यहाँ क्या है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों की एंटिटी जो है वो डिफरेंट है. मीन टू से कि बिजनेस अपने नाम में अलग और बिजनेसमैन अपने नाम में अलग एसेट्स और लायबिलिटी रख सकते हैं. किसी व्यक्ति की बिजनेस Is the audio gone for all? Sir is on mute. सर का माइक ऑफ हो गया है. Professor got disconnected. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, स्लाइड चल रहा है. हेलो.
हम उन लॉसेस का एडजस्टमेंट अभी से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक। लेकिन प्रॉफिट हम ये जब मानते हैं कि जब होगा तभी उसको अपनी बुक्स में हम मेंशन करते हैं, ठीक। नेक्स्ट वन आता है कन्वेंशन ऑफ मैटरनिटी, ओनली दोज इवेंट शुड बी रिकॉर्डेड which have a significant bearing and insignificant thing should be ignored. There is no formula for identifying material and immaterial event. It depends on the accounting discretion. इसको मैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। देखिए मैटेरियलिटी के बारे में बात करें तो बहुत सारी चीज ऐसी होती है जो कुछ कंसर्न के लिए बटा मैटर करती है और कुछ के लिए मैटर नहीं करती। तो इसको मैं आपको एक एक्सपेंडिचर के साथ समझाना कोशिश करूंगा कि हमारे यहाँ दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो रूटीन एक्सपेंसेस है जिसको हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन करते हैं, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जो अगर कोई हम अपनी एसेट्स को परचेज कर रहे हैं उसको वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं, और जो हमारे बिजनेस एक्सपेंशन के काम आते हैं उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में शो नहीं करते, उसको हम बैलेंस शीट में मेंशन करते हैं। अब क्या होता है कि हम इसको अगर हम शो करें कन्वेंशन और मैटेरियलिटी को, तो लाइक हमने दो हमने स्कूल पिक करे। एक कोई छोटा स्कूल है जिसका टर्नओवर इन अ ईयर, जिसका जो रेवेन्यू है वो 1 करोड़ रुपए। I believe we lost you altogether in the middle and then it suddenly resumed. Was it the same for everyone or was it only Yes, for sir. me? Yes, sir. It was the same for everyone. We all lost it. Yeah. You were on mute, sir. We were on the 26th slide for accounting conventions. Accounting convention. Yeah, and the presentation is still stuck there on the 26th slide. Convention of conservatism. Convention of disclosure, consistency. See, first of मैंने कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी पढ़ाया था, उसमें आपको डेप्रिसिएशन का एग्जांपल दिया था। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म पढ़ाया था, उसमें आपको लॉस का प्रॉफिट का एग्जांपल दिया था कि प्रॉफिट को एक्सपेक्ट नहीं करते, प्रॉफिट जब होता है तब माना जाता है, लॉस को एक्सपेक्ट करते हैं उसके लिए भी एडजस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं। फिर नेक्स्ट वन Sir, while you were explaining all this, you were actually on mute, so none of us were able to hear you. ओके आई अंडरस्टैंड। वो थोड़ा नेटवर्क इशू था, मैं दोबारा बताता हूँ प्लीज। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, यहाँ ये क्लियर हुआ था नहीं हुआ था आपको? सर कौन सा? हेलो सर ये मतलब ये 26 स्लाइड वो पूरा ही सर बाकी था, मतलब आप जब बता रहे थे तो मैं दोबारा कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। Accounting should be prepared in such a way that all material information is clearly disclosed to the user। कि हम जो भी अपनी अकाउंटिंग बुक में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पूरे हमारे पास हो और उसको हम पूरा डिस्क्लोजर दें कि जो भी उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर हो उनको वो चीज इजीली समझ में आता है। ये कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर कहलाता है। इवन इसलिए हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री के अंदर नीचे नरेशन शो करते हैं। नरेशन मीन टू से कि जो ट्रांजैक्शन करा होगा वो प्रॉपर तरीके से वहां पर शो हो जाएगा, और इसीलिए हम क्या करते हैं, एक अपने यहाँ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के अलग से फाइल मेंटेन करते हैं, वो वहां पर हमारे काम आता है कि इसको हम चेक करना हो तो कैसे क्रॉस चेक करेंगे। इसके बाद आता है नेक्स्ट कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी मीन टू से कि हम कहते हैं कि अगर हमने एक मेथड अडॉप्ट किया है तो हमें कंटिन्यूसली में वो मेथड ही कंटिन्यू करना है अपने। लाइक मैं आपको एग्जाम्पल साथ समझाता हूँ कि हमारे यहाँ डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के दो मेथड होते हैं। एक कहलाता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड जिसको हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में बोलते हैं, और एक होता है डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए डिमिनिशिंग मेथड जिसको हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड में बोलते हैं। इफ वी टॉक अबाउट फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन जो होता है अमाउंट में फिक्स होता है, रेट में फिक्स नहीं होता। मैं तो एग्जाम्पल सब समझाता हूँ आपको। लाइक हमने एक कार परचेज करी 10 लाख रुपए की और हम कार के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो इन फर्स्ट ईयर वी चार्ज 10% डेप्रिसिएशन ₹1 लाख। और अब हमने क्या काम करा, इस 10 लाख में से 1 लाख डेप लेस कर दिया नेट वैल्यू निकालने के लिए कार की। अब जो हम नेक्स्ट ईयर चार्ज करेंगे तो नेक्स्ट ईयर हमें जो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड होता है उसमें डेप की अमाउंट सेम रहती है। लाइक सेकेंड ईयर में डेप जो हमारा लगेगा वो 1 लाख के लगेगा, लेकिन अगर हम रेट की बात करते हैं तो अब कार की वैल्यू 10 लाख से घटकर 9 लाख रह गई है, तो रेट हमारी 10% नहीं रही।
तो ओरिजिनल कॉस्ट में क्या हुआ कि डेब्ट का रेट सेम नहीं है बट डेब्ट का अमाउंट सेम है। लेकिन अगर हम बात करते हैं रिटन डाउन वैल्यू यानी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की, तो इसमें हमारा रेट सेम रहता है, अमाउंट सेम नहीं रहता। लाइक उसी एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं कि हमने कार खरीदी फर्स्ट ईयर में 10 लाख रुपए की, हमने डेब चार्ज किया 10% का, डेब आया 1 लाख। अब सेकंड ईयर में जो हम डेब लगाएंगे वो 10 - 1 9 लाख पर लगाएंगे, और 9 लाख का जब हम 10% डेब लगाएंगे तो वो आएगा 90,000। तो यहाँ पर अमाउंट सेम नहीं है बट डेब का रेट सेम है। तो अब लौट कर अपनी जगह आते हैं कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी पर। ऐसी बहुत जगह हमारे अकाउंटिंग मेथड होंगे, तो हमारे अकाउंटेंट ने अगर एक मेथड को अडॉप्ट किया, एक मेथड को पिक किया, तो आगे उसे फर्दर ईयर में भी उसी मेथड के साथ वो अकाउंटिंग अपने आप करनी पड़ेगी। अगर वो कुछ चेंज करना चाहता है तो उसको इनिशियल ईयर से उसके अंदर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये कहलाता है हमारा कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। क्लियर है सबको? आप सबको क्लियर है बात? अब नेक्स्ट वन, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिव मीन टू से कि हम कहीं ना कहीं जो बिजनेस करते हैं तो उसमें हमारी कंजर्वेटिव थिंकिंग रहती है। लाइक हमें पता है कि फ्यूचर में हमें ये प्रॉफिट होने वाला है, और तो हम प्रॉफिट को प्रॉफिट नहीं मानते जब तक कि वो हमें प्रॉफिट होना ही जाए। लेकिन अगर हमें पता है कि फ्यूचर में कोई लॉस हो सकता है तो उसके लिए हम शुरुआत से ही अपने यहाँ रिजर्व या अलग अलग तरीके से प्रोविजन क्रिएट करते हैं। प्रॉफिट को मैं और एग्जाम्पल से समझाता हूँ। लाइक हम किसी भी पर्टिकुलर चीज में बिजनेस करते हैं, लाइक हम पेन सेल करते हैं और हमें पता है ये पेन जो है हमारे यहाँ 5 रुपये का आता है, उस पेन को हम मार्केट में 7 रुपये का सेल करते हैं। हमने बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1000 पेन परचेज करे तो हमारे 5000 के पेन हो गए, और एट द एंड ऑफ द ईयर हम केवल उसमें से 600 पेन बेच पाए। हमारे पास 400 पेन स्टॉक में बचे हुए हैं। तो अब हम 400 पेन को हम बेचते थे 7 रुपए के रेट पर और हमने खरीदा था उसको 5 रुपए के रेट पर। लेकिन जो स्टॉक वैल्यूएशन होता है वो हमेशा होता है विच एवर इज लेस, मार्केट वैल्यू और कॉस्ट प्राइस। तो ये एग्जाम्पल है हमारा कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म का, कि हम प्रॉफिट को एक्सपेक्ट नहीं करते, प्रॉफिट जब होता है तब माना जाता है। लेकिन यदि कोई लॉस है तो उस लॉस को हम इमीडिएट अपने उसके लिए रिजर्व बनाएंगे, प्रोविजन बनाएंगे। ये कहलाता है हमारा कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। क्लियर है एवरीवन? आर यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। हेलो। नेक्स्ट वन, कन्वेंशन ऑफ मैटरनिटी। मैटरनिटी की बात करते हैं। अलग अलग कंसर्न में बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, बहुत सारी कंसर्न में बहुत सारी चीजें मैटर नहीं करती। तो हमें ये समझना पड़ेगा। इसको मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू कोशिश करूंगा समझाने की। हमारे यहाँ 2 तरह के एक्सपेंस होते हैं, एक होता है कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर और एक होता है रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर। अगर हम रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर की बात करें तो दिस आर रूटीन एक्सपेंसेस एंड शोइंग आवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक। और अगर हम कैपिटल नेचर के एक्सपेंस की बात करें तो ये हमारे रूटीन नेचर के एक्सपेंस नहीं है, ये बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए या एसेट्स को परचेज करने वाले खर्चे होते हैं, और इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में शो ना करके इसको हम अपनी बैलेंस शीट में शो करते हैं। अब मैं इसको और अच्छे समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। लाइक हमने 2 स्कूल पिक करे। एक स्कूल है जिसका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए का है एनुअल, और एक स्कूल है जिसका टर्नओवर 50 करोड़ या 100 करोड़ रुपए का एनुअल टर्नओवर है। अब क्या होता है कि एक स्कूल ने अपना एक साइकिल स्टैंड बनाया बच्चों के लिए, या एक कार की पार्किंग बनाई, और उस कार की पार्किंग पर उसने 1 करोड़ वाले स्कूल ने उसके ऊपर 20 लाख या 25 लाख या 50 लाख रुपए खर्च कर लिए। तो जो जिस स्कूल का टर्नओवर एनुअल 1 करोड़ था उसके लिए 50 लाख 25 लाख मैटर करेगा। तो उसके लिए ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, उसके लिए क्या है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो वो इसको शो करेगा अपनी बैलेंस शीट में, वो उसको प्रॉफिट एंड लॉस में मेंशन नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम इसको दूसरे स्कूल से कंपेयर करें जिसके यहाँ 100 करोड़ का टर्नओवर था, उसने भी अपने वैसे ही सेम पार्किंग या सेम साइकिल स्टैंड बनाया, लेकिन उसका टर्नओवर 100 करोड़ का है, तो उसके लिए 25 लाख या 50 लाख रुपए की वैल्यू इतनी मैटर नहीं करेगी। तो उसके लिए रूटीन एक्सपेंस की कैटेगरी में आएगा, वो इसको अपने आप प्रॉफिट एंड लॉस में शो करेगा। तो कन्वेंशन और मैटरनिटी का कोई स्पेसिफाइड टूल नहीं है, ये कहीं ना कहीं आपके उस चीज को समझने की बात है कि कौन सा एक्सपेंस किस संस्था के लिए मैटर करेगा और उसको हमें किस तरीके से उसके आगे ट्रीट करना। नेक्स्ट आता है जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। अभी तो मैंने आपको शुरू में थोड़ा सा
बताया था जर्नल उसके बारे में, लेजर के बारे में, ट्रायल बैलेंस के बारे में। तो अब मैं उसको कोशिश करूंगी थोड़ा उसके फॉर्मेट के बारे में क्लियर कर दूं। जर्नल, द वर्ड जर्नल इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड जर्न विच Is it audible to everyone? No, one of the users on which he was talking, that one has got disconnected. I think it will be good if everyone can raise their hands to get his attention. इसी तरीके से एक कॉलम होता है हमारा लेजर फोलियो। Sir, लेजर फोलियो you are not audible for last 5 minutes. सर नेटवर्क, Can you please start from the journal again? आपका बीच बीच में आवाज चला जाता है सर। पता नहीं सर नेटवर्क इशू है, कोई बात नहीं, मैं स्टार्टिंग से करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, performer of journal, there are 5 columns in journal. Number 1 is date. We mention the date of transaction in date column. Second one is particular. In particular जो भी पार्टी डेबिट होगी वो आ जाएगी, जो पार्टी क्रेडिट होगी वो आ जाएगी। नीचे हम ब्रैकेट में इसका नरेशन शो करते हैं। नरेशन मीन टू से मैंने आपको बताया फुल डिस्क्लोजर ऑफ द ट्रांजेक्शन। इन शॉर्ट इन आवर लैंग्वेज हम ट्रांजेक्शन को वहां पर मेंशन करते हैं। नेक्स्ट कॉलम होता है एलएफ। एलएफ मीन टू से लेजर फोलियो। अकाउंटिंग के अंदर 2 बुक बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है जर्नल और एक होता है लेजर, और दोनों ही बुक प्रिंटेड बुक होती हैं, दोनों पर नंबर्स लिखे होते हैं। हम क्या करते हैं अकाउंटिंग को क्रॉस चेक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने ट्रांजेक्शन को क्रॉस चेक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से या उनके ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जर्नल की जो हमने एंट्री मेंशन कर रहे हैं, हम उनके आगे लेजर वाले कॉलम में हमने वो जर्नल की एंट्री लेजर के किस पेज पर मेंशन करी है, वो पेज नंबर यहाँ पर हम शो करते हैं, जिससे इन फ्यूचर हमें कभी भी वो क्रॉस चेक करना पड़े तो हम इजीली उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से जो हम लेजर बनाते हैं तो लेजर में लिखते हैं हम JF जर्नल फोलियो, तो हमने वो एंट्री जर्नल के किस पेज पर मेंशन करी है वो वहां से क्रॉस चेक हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट 2 कॉलम आपके अमाउंट के हैं, एक डेबिट अमाउंट, एक क्रेडिट अमाउंट। जैसा आपको बताया था कि आपके डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमेशा इक्वल रहता है। डेबिट वाले ट्रांजेक्शन का अमाउंट डेबिट कॉलम में, इसमें क्रेडिट वाली पार्टी का अमाउंट क्रेडिट कॉलम। आइटम्स इन जर्नल, ये इन्होंने पूरा मेंशन कर दिया आपको समझाने के लिए। नेक्स्ट होना आता है पॉइंट टू बी नोटेड बिफोर जर्नलाइजिंग। एक होता है हमारा कंपाउंड जर्नल एंट्री। अगर सिंपल 2 पार्टी इन्वॉल्व होती है तो सिंपल जर्नल एंट्री कहलाती है, और किसी ट्रांजेक्शन के अंदर 2 या 2 से ज्यादा पार्टी इन्वॉल्व है
तो वो हमारी कंपाउंड जर्नल एंट्री कराती है। मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा आपको कि इफ वी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ओनली तो द एंट्री शुड बी पास कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, एंड इफ वी स्टार्टेड with our business cash with assets, then entry should be passed cash account debit, assets या like building account debit या furniture account debit to capital। तो जब दो या दो से ज़्यादा इसके अंदर पार्टीज इन्वॉल्व होंगी तो हमारी वो कंपाउंड जर्नल एंट्री बन जाती है। इसी तरीके से हमारे ट्रांजेक्शन दो तरीके से ट्रांजेक्शन होते हैं, कैश और क्रेडिट, और दोनों ही तरीके से आपका एंट्री करने का पूरा तरीका चेंज हो जाता है। अब इसको भी मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा आपको कि अगर हम कैश ट्रांजेक्शन अपने यहाँ कर रहे हैं, लाइक इफ वी परचेज गुड्स फ्रॉम समवन इन कैश फ्रॉम मिस्टर महेश, तो एंट्री शुड बी पास परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। हमें महेश का नाम लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, हम वहाँ पर जो नरेशन बनाएंगे वो एंट्री बनाएंगे कि बीइंग गुड्स परचेसेस फ्रॉम मिस्टर महेश या फ्रॉम सो एंड सो विद कैश, और एंड जो उसका डेबिट अमाउंट होगा डेबिट में पहुंच जाएगा, जो क्रेडिट अमाउंट होगा क्रेडिट में पहुंच जाएगा। लेकिन अगर हम इसी को कहते हैं कि इफ वी गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर महेश ऑन क्रेडिट, तो मीन टू से अब हमने गुड्स उनसे जो परचेज करे हैं वो क्रेडिट में परचेज करे हैं, तो एंट्री शुड बी पास परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर महेश। यहाँ पर कैश नहीं आएगा, यहाँ मिस्टर महेश को क्रेडिट कर दिया जाएगा कि इन फ्यूचर हमें उनको पेमेंट देना है, तो ये हमारे क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएंगे। तो हमें जर्नल एंट्री में ट्रांजैक्शन करने से पहले ये आइडेंटिफाई करना होता है कि वो ट्रांजैक्शन कैश है या क्रेडिट है, क्योंकि उस दोनों ही कंडीशन के अंदर हमारा जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है उसका नेचर जो है वो बदल जाता है। नेक्स्ट आता है आपका कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट मीन टू से कि जब हमारा ट्रांजैक्शन मैच्योर होता है, जरूरी नहीं कि हम अभी कैश में खरीद रहे हैं, हम उधार क्रेडिट पे भी कर सकते हैं। तो जब भी वो हमारा ट्रांजैक्शन मैच्योर होता है, द टाइम ऑफ मैच्योरिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन, अगर हम चाहे पेमेंट कर रहे हो तो हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं, और अगर हम पेमेंट मिल रहा हो तो हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं। तो कैश डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ मैच्योर ऑफ द ट्रांजैक्शन, ठीक। और कैश डिस्काउंट हमेशा कैश की पोजीशन के साथ चलेगा। अगर कैश डेबिट होगा जनरल एंट्री करते समय तो डिस्काउंट भी डेबिट हो जाएगा, और अगर कैश क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट हो जाएगा, तो डिस्काउंट भी क्रेडिट हो जाएगा। और कैश डिस्काउंट को हम हमेशा जनरल एंट्री के अंदर शो करेंगे, मेंशन करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका ट्रेड डिस्काउंट। ये वो डिस्काउंट होता है जो कभी भी जर्नल एंट्री में शो नहीं किया जाता, इसका अमाउंट लेस हो जाता है। ये एट द टाइम ऑफ परचेज और सेल होता है। लाइक क्या हुआ कि आपने कहीं सेल लग रही है कि साहब 100 वाली चीज़ आपको 70 में 80 में मिल रही है, ठीक है, या उसने कहा कि आप इतना चीज़ परचेज करो तो हम आपको इतना डिस्काउंट देंगे 30। तो ये लाइक हमने 100 पेन परचेज करे और वो पेन उसने 10 रुपये वाला हमें पेन 9 रुपये का लगा दिया, ठीक है, वो अलग बात है हम पेमेंट अभी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने वो पेन परचेज करे तो परचेसेस अकाउंट डेबिट, और वो हमने करे थे मिस्टर राम से, तो 2 राम आया, 100 × 9 900। हमने डायरेक्ट उनका नेट अमाउंट मेंशन कर दिया, वहां पर डिस्काउंट मेंशन नहीं करा। ये ट्रेड डिस्काउंट को अपनी बुक में शो करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट वन आता है परचेसेस ऑफ शेयर। When share or security are purchased, the entry is made at market value and not at face value. Brokerage paid on the purchase of such investment is also added the amount of the investor. ये परचेसेस ऑफ शेयर लाइक क्या होता है कि शेयर का जो हमेशा एक फेस वैल्यू रहता है, वो कभी भी कोई भी शेयर मार्केट में फेस वैल्यू पर नहीं बिकता, वो उसके प्रीमियम वैल्यू पर बिकता है। लाइक कोई शेयर जो उसकी फेस वैल्यू है वो 10 रुपये है, पर मार्केट में बिक रहा है वो 270 का या 370 का, और हमने 100 शेयर परचेज करे, तो हम हमेशा उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी वो उस पर मेंशन करेंगे 100 × 370, 100 × 10, उसको कभी नहीं लिखेंगे। और एड ये खाली शेयर के ऊपर नहीं, ये हर एसेट के ऊपर अप्लाई होगी कि एट द टाइम ऑफ परचेज, एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ एनी एसेट, जो भी हम खर्चा कर रहे होंगे, जो भी एक्सपेंस कर रहे होंगे, चाहे वो ब्रोकरेज के रूप में हो, लेबर के रूप में हो, या कोई और परचेज एक्सपेंस हो, वो उसकी कॉस्ट के अंदर ऐड हो जाता है। लाइक हमने 370 का 100 शेयर परचेज करे 37,000 के, और उसने बोला कि आपको उसके ऊपर 600 या कि शेयर अकाउंट डेबिट या इन्वेस्टमेंट शेयर अकाउंट डेबिट टू कैश विद द 37,000 प्लस ब्रोकरेज एक्सपेंस जो भी होगा आपका 600 या 1,000। नेक्स्ट वन आता है सेल ऑफ शेयर। इफ शेयर और सिक्योरिटी आर सोल्ड
The entry should be passed at market value, less brokerage if any paid on such share. इसी तरीके से जब हम कोई शेयर को खरीद रहे थे तो एट द टाइम ऑफ परचेसिंग ऑफ शेयर जो हम खर्च करते थे एडिशनल, वो उसकी कॉस्ट में ऐड किया जाता था। लेकिन जब हम कोई शेयर को सेल करते हैं तो ऐसी कंडीशन के अंदर अगर कोई खर्च कर रहे हैं, कोई ब्रोकरेज पे कर रहे हैं, तो वो उसकी सेल में से लेस कर दिया जाता है और जो जो हमें नेट अमाउंट मिला वो उस नेट अमाउंट पर ही आपका शो किया जाता है। ठीक है, कुछ और पॉइंट दे रहे हैं, वो पॉइंट टू बी नोटेड बिफोर एनालाइजिंग, लाइक एक्सपेंस इंसिडेंटल टू द परचेज ऑफ फिक्स एसेट। जो भी एक्सपेंस होगा वो उसके अंदर आ जाएगा, ऐड हो जाएगा, जैसे आपको बताया था। इंश्योरेंस ऑफ लाइफ पॉलिसी, ये कुछ अलग सी बात है, इसको समझ लीजिए नॉर्मल एंट्री से, कि अगर हमने कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है और वहाँ हम अपना प्रीमियम पे कर रहे हैं तो वहाँ प्रीमियम अकाउंट डेबिट नहीं होता, क्योंकि इंश्योरेंस रिलेटेड टू द बिजनेसमैन ओनली, ये बिजनेस रिलेटेड नहीं है, तो ये ड्राइंग्स कहलाता है। तो वहाँ एंट्री बनाते हैं हम, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये कुछ मैंने कुछ एक्सेप्शन एंट्री शो कर रखी है जो थोड़ा सा अलग, वो उसमें रूल अप्लाई नहीं होते, ये थोड़ा अलग से समझ पड़ती है। इसी तरीके से गुड्स और कैश गिवन एज चैरिटी, हम किसी को कोई गुड्स या कैश चैरिटी में देते हैं तो वो एक्सपेंस नहीं है हमारे लिए, तो वहां पर एंट्री पास होगी हमारी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट, कि जो हमने गुड्स खरीदे थे हम अपने परचेस को कम कर रहे थे, जो हमने परचेस करा था तो हमने डेबिट करा था, अब जब परचेस कम कर रहे हैं तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। मैं अपने मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ थोड़ा सा हमारा लैंग्वेज का फुट जो रहता है वो डिफरेंट रहता है, तो मैं अपने बच्चों को समझाता हूँ जो स्पेशली रूरल बैकग्राउंड से आते हैं कि अकाउंटिंग के हेलो यस सर। हेलो अगेन नेटवर्क इशू। हाँ, तो मैं थोड़ा और मैं बताना चाहूंगा कि हम जिस एरिया आते हैं तो वहाँ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो रूरल बैकग्राउंड के होते हैं, तो मैं उनको समझाने की चीज बोलता हूँ हमेशा, और ये शायद हमेशा काम आती है सब लोगों के। आप तो सब लोग कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी पोस्ट पर सब लोग हो, तो मैं उनको समझाता हूँ कि किसी अकाउंटिंग के अंदर किसी भी चीज को कम करना है या खत्म करना है तो उसको आप उल्टा लटका दीजिए। लाइक जब हमने वो ट्रांजेक्शन करा था अगर वो डेबिट है तो कम करते टाइम या खत्म करते टाइम उसे क्रेडिट कर दीजिए, और अगर आपने उसे एट ए टाइम अब जब रेज हुई थी वो क्रेडिट हुआ था तो उसे कम करते टाइम या खत्म करते टाइम उसे डेबिट कर दीजिए। इसी तरीके से जब हमने परचेज किया था तो जब किया था तो उसे डेबिट करते थे, और अब जब वो परचेज हम कम कर रहे हैं चैरिटी के रूप में तो उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। इसी तरीके से आगे है गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, कि हमने कोई गुड फ्री सैंपल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो वहां भी एंट्री बन जाती है कि फ्री सैंपल या एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज। ठीक है, तो मैम ये आज मैं कोशिश करूंगा कि मैं आज इसको यहीं रोकूं, फिर जो नेक्स्ट सेक्शन होगा मैं कोशिश करूंगा कि आपका और इस यूनिट का पार्ट कवर करने के लिए, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। आपने जो भी कमेंट्स हो आप प्लीज़ यहाँ पर इनको दे सकते हैं, और मैं अगर जिसको जो भी ये स्लाइड्स वगैरह चाहिए होंगी तो मैं यहाँ पर शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से टेक कर सकते हैं। अगर किसी को PDF पे नोट्स भी चाहिए होंगे तो आप मुझे यहाँ पर के थ्रू, अभी सर के थ्रू मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वो भी प्रोवाइड करा सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। Thank you for cooperating. Hello. Hello. Yeah, Prof, can you please extend assignment date? Sorry. Assignment date. Hello. Hello. Assignment date. Yeah. Hello. Yes. हाँ सर प्लीज बोलिए। हेलो, कैन यू प्लीज असाइनमेंट डेट टिल एंड ऑफ द मंथ? श्योर सर, मैं आपको बता दूंगा पता करके। श्योर सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. So where you will send PDF slides? मैं जल्दी शेयर कर दूंगा सर, आप लोग अपना मेल ID वाला दीजिएगा, मैं जो भी इसके कोऑर्डिनेटर में उससे बात करूंगा और आपको जल्दी शेयर कर दूंगा सारी चीजें। Okay, thank you.